Hello students and welcome to my channel. In today's video, we shall do your chapter number 17, reported speech. Now, what do we understand by reported speech? Reported speech, students, means when we want to tell someone what another person said. Now, in order to tell someone what another person said, we can do it in two ways, either in direct speech or indirect speech. Now, we use reported speech when we want to tell someone what someone said. Now, in this case, we usually use a reporting verb like say, tell, ask, etc. So, the main part of your reported speech is your reporting verb, which will determine whether it is direct speech or indirect speech. And what are the examples of those reporting verbs, students? Say, tell, ask, etc. Now, once you have identified the reporting verb, we will then change the tense of what was actually said in your direct speech to make it in direct speech. Now, we may report the words of a person in two ways. Refer to your textbook, students. We can quote the speaker's actual words without making any change. It is called direct speech. Now, when we quote the speaker's words as same to same without making any changes to it, then it is called as direct speech. Next, we can quote the speaker's words in our own words. Now see, this is called indirect speech or reported speech. What is direct speech? When we quote the speaker's actual words. And when we quote the speaker's words in our words, then it is indirect speech. Now, direct speech, students, you have to understand, is used to actually only repeat what someone else has said. And indirect speech is used to report on what someone else has said. Okay, direct, the word direct itself is telling us that जैसा है वैसा ही बोलना है, मतलब रिपीट करके ही बोलना है जो किसी और ने बोला है. एंड इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जब हम ऐसे रिपोर्ट करते हैं जिस हमारे वर्ड्स में जो किसी और ने बोला है. सो यहां पर रहता है आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस. एग्जाम्पल्स के साथ और देखते हैं. नाउ, I said to my father, I am not telling a lie. अब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है. I said to my father. यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? said. ठीक है. अब एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट स्पीच का, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए, I said to my father, I am not telling a lie. अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हमने आइडेंटिफाई किया said. अब ये जो इन्वर्टेड कोट्स में है इस पे ध्यान दीजिए. I is your subject, then your telling becomes your verb और lie is the object. ठीक है. Now, telling जो है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया. V1 प्लस ing प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ये वाला स्टेटमेंट. सो ये जो भी आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आना चाहिए आपके डायरेक्ट स्पीच में. नेक्स्ट देखेंगे, आई टोल्ड माई फादर दैट आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई. अब ये है इनडायरेक्ट स्पीच. क्यों? क्योंकि ना तो ये इन्वर्टेड कॉमास में है एंड ये जो रिपोर्टिंग वर्ड सेड है ये इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाता है आपका टोल्ड. ठीक है. The verbs like said, to, told, etc. in the sentence before comma. अब देखिए दोनों sentences में I said to my father के बाद comma है. तो ये जो before comma वाला sentence है उसमें आपका reporting verb आ जाता है. I said. Said is your reporting verb. And the part which is written within the inverted commas is called reported speech. Please concentrate on this sentence. I said to my father, comma, inverted comma start, I am not telling a lie, full stop,
क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स। इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे आप, डायरेक्ट स्पीच वाला। यहां पर देखिए, आई सेड टू माई फादर, कॉमा से पहले ही हमेशा आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिल जाएगा। इस केस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। एंड ये जो कॉमा के बाद जो इन्वर्टेड कॉमास में आता है वो पोर्शन को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सो वी फाइंड दैट इन डायरेक्ट स्पीच एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर मेंशन्ड। स्पीकर ने जो भी बोला, जैसे भी बोला, वो एग्जैक्ट वर्ड्स उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं है। We also find that to change a sentence from direct to indirect speech, following changes are required. क्या changes है? देखिए, we use the word that before the indirect statement. I said to my father, comma and inverted commas में आपका statement है। लेकिन जब indirect speech हो जाएगा, ये said बन जाता है told। हमेशा याद रखिए, said बन जाता है told। And I told my father that I was not telling a lie. I was not telling a lie. एक तो पहले said हो गया told, reporting verb changes from said to told, and the inverted commas are removed and the sentence after the comma is followed by that. ये comma हट जाएगा डायरेक्ट स्पीच से और इनडायरेक्ट स्पीच में that लगेगा। इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे एंड फिर आप लिखेंगे उसका टेंस बदल के। वो हम अभी पढ़ेंगे टेंस कैसे बदल के लिखना है। सो पहला चीज हमने क्या किया, टू फाइंड टू हाउ टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, फिर हम दैट कॉमा के बाद कॉमा को निकाल के दैट लगाएंगे, देन हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, और फिर वर्ब को चेंज करेंगे। वर्ब को क्या चेंज किया हमने, आई एम जो था बन जाता है आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। सो तीन चीजें हमें ध्यान देना है। डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो कि सेड होता है, उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर दिया बच्चों, टोल्ड कर दिया। ठीक है। सेकंड वाला ध्यान दीजिए, डायरेक्ट स्पीच में एक कॉमा आता है, आई सेड टू माय फादर के बाद एक कॉमा आ रहा है, वही वाला चीज जो कॉमा आता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हटा के उसके जगह पे दैट लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो स्टेटमेंट आता है उसको हम हटा देंगे, और जो वर्ब का फॉर्म होता है जो कि एम वर्ब है वो वॉज वर्ब हो जाता है। हर सेंटेंस के लिए वर्ब जैसा सेंटेंस दिया गया है उस हिसाब से चेंज करते जाएंगे। सो 3 थिंग्स, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस, comma is removed and that is added, and the verb form changes. Now हम पढ़ेंगे कुछ rules for changing direct speech into indirect speech. ध्यान दीजिए अपने टेक्स्ट बुक्स पे बच्चों, रूल्स टू चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। पहला रूल हमारा क्या कहता है, उसको हम एग्जाम्पल्स डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ेंगे। पहला रूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए, दे सेड कॉमा विद इन इन्वर्टेड कॉमास वी आर हैप्पी। अब पहले ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि यहां पर सेड है जो आपका डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब होता है। उसके बाद एक कॉमा आया, ये भी आपका इंडिकेशन है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास में एक स्टेटमेंट है, वी आर हैप्पी। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इन योर डायरेक्ट स्पीच इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसी स्टेटमेंट को हमें इनडायरेक्ट में क्या करना है, दे सेड वी आर हैप्पी जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये बन जाएगा आपका दे सेड दैट दे वर हैप्पी। अब आप पूछेंगे कि यहां पर तो आपने पढ़ाया था कि सेड बन जाता है टोल्ड, बन जाता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। देखिए जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना, ये बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। सो सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में सेड ही रहेगा। ये सब छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब दे सेड वी आर हैप्पी बन गया दे सेड दैट, आपने कॉमा हटा दिया यहां से और दैट लगा दिया, और इन्वर्टेड कॉमास हटा के आपने क्या किया दैट के बाद, दैट दे वर हैप्पी। आर जो हो गया वो पास्ट टेंस में वर बन गया। ठीक है। ये रूल्स है, तो ये रूल्स को हमको फॉलो करना ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको पढ़ाया था टेंसेस में,
कि कंटिन्यूअस शब्द जहां भी आएगा आपके वर्ब फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे प्लेइंग, प्लेइंग आपका वर्ब है, तो ये जहां पर भी वर्ब में आईएनजी वाले शब्द आएंगे, you can understand that they are all in your continuous tense. Whether it is present, past or future depends on what is given. So present continuous tense changes to past continuous. She said, comma, within inverted commas, my sister is playing well. ये direct speech हुआ। अब इसी का indirect क्या होगा? She said, comma हटा के that लगाएंगे, my sister बन जाता है her sister, क्योंकि वो अभी बोल रही है किसी को, ठीक है। ये तो she said, अब ये जो उसने बोला डायरेक्ट स्पीच में वही बोल रही है, शी सेड माई सिस्टर इज प्लेइंग वेल। बट अगर हम उसके वर्ड्स को बताएंगे अपने वर्ड्स में, तो हम उसके टेंस को चेंज करेंगे। शी सेड दैट हर सिस्टर, क्योंकि हम उसने जो अपने बहन के बारे में बोला वो रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना। यहां पर डायरेक्ट स्पीच में उसने जो बोला वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे उसने अपने बहन के बारे में क्या बोला, तब वो बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसी स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, अपने वर्ड्स में बताएंगे उसने क्या बोला। He said that her sister was playing well. इस playing जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो was playing हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। समझ में आया? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के बारे में समझ में आया? डायरेक्ट होता है जब कोई अपना ही स्टेटमेंट बता रहा है, इनडायरेक्ट होता है जब हम उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में बोलेंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। और इस बेसिस पे ही जब हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, वर्ब फॉर्म को चेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। अब थर्ड वाला रूल देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस changes to past perfect tense. अब जहां पर भी perfect आता है, you know that have लगता है, ठीक है, has या have लगता है, आपको ये पता है। Please refer to tenses chapter. Before doing this direct speech and indirect speech, all your fundamentals will be clear, because reported speech का main part is your tenses. Okay, so if your tenses chapter is not clear, first go to my video on tenses, see that, and then this will be very easy for you. So present perfect tense changes to past perfect tense. Anurag said, comma, I have finished my homework. ये तो अनुराग खुद बोल रहा है। अब अगर हम बोलेंगे कि अनुराग ने क्या बोला, ये बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग। सो अनुराग सेड दैट, क्योंकि कॉमा को निकाल के हम दैट लगाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब अनुराग ने क्या बोला, दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये अनुराग बोल रहा है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि अनुराग ने क्या बोला, हम क्या बोलेंगे, अनुराग सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक है। अब चौथा रूल है, विल एंड शैल इन द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू वुड एंड शुड रेस्पेक्टिवली। विल आपका वुड बन जाता है एंड शैल आपका शुड बन जाता है। कौन से टेंस में बच्चों, फ्यूचर टेंस में। अनन्या सेड टू हर कजन, आई विल गो फॉर अ वॉक। अनन्या अपने कजिन को बोल रही है कि वो वॉक पर जाएगी, फ्यूचर टेंस। सो अगर हम इसी स्टेटमेंट ऑफ अनन्या को अपने वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अनन्या टोल्ड हर कजिन। अब देखिए बच्चों, आई विल टेल यू द डिफरेंस व्हेन सेड बिकम्स टोल्ड। अनन्या सेड टू हर कजिन, वो किसी को बोल रही है यहां पर, ठीक है, एक सब्जेक्ट है आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये सेड बन जाता है टोल्ड। ठीक है। अब देखिए प्रीवियस सेंटेंस में अनुराग सेड, किसको बोला, क्या बोला, कुछ नहीं, वो खुद के लिए ही बात कर रहा है। उसके ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, शी सेड, किसको बोला, कुछ नहीं, शी सेड माई सिस्टर इज प्लेइंग वेल। उसके ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, दे सेड वी आर हैप्पी, नहीं, ये दे सेड, बस दे सेड, किसको, दे सेड टू। अगर जब दे सेड टू आएगा, लाइक अनन्या सेड टू हर कजन, आई विल गो फॉर अ वॉक, अनन्या टोल्ड हर कजन दैट शी वुड गो फॉर अ वॉक। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, अनन्या सेड टू हर कजन आया ना यहाँ पर, तो अनन्या जो सेड के बाद अगर आपका एक सब्जेक्ट आएगा, तो आपका सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो टोल्ड हो जाता है। सो अनन्या टोल्ड हर कजन, कॉमा निकाल के दैट लगाएंगे,
that she would go for a walk. Will go बन जाता है that she would go for a walk. ये जो स्टेटमेंट है इनडायरेक्ट स्पीच में स्टूडेंट्स, वी आर टेलिंग अबाउट व्हाट अनन्या हैज सेड, इसीलिए will go बन जाता है that she would go for a walk. Next rule, students, is the simple past in the direct speech changes to past perfect in the indirect speech. The engineer said the roof collapsed today. ये simple past है direct speech में. The engineer said है, तो engineer said that the roof had collapsed that day. ये जो डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट हो गया वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, हैड कोलैप्स्ड हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हैड कोलैप्स्ड हो जाते हैं. इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आपका टेंसेस चैप्टर शुड बी परफेक्ट in order to understand these rules properly. Next rule, if the main verb in the reporting speech is in the present tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed. यहां पर देखिए मेन वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस. अनामिका सेज आई एम इल. अनामिका सेज दैट शी इज इल. क्यों? क्योंकि यहां पर मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस में है. सेज, सेज इज इन प्रेजेंट टेंस. अभी तक हमने जो सारे एग्जांपल्स किए थे वहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब था पास्ट टेंस में, सेड में था. ठीक है, तो जहां पर भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वैसे ही रहेगा. द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड. अनामिका सेज रहता है अनामिका सेज. दैट शी इज इल, कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, दैट शी इज इल. हम ये अनामिका के बारे में बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए दैट शी इज इल. बट ये सेज जो है सेज ही रहेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, if the main verb in the reporting speech is in the future tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed. ये सब आप अंडरलाइन करेंगे किस किस चीजों केसेस में चेंज नहीं होता है. अभय will say he has not beaten the boy. अभय will say that कॉमा हटा के he has not beaten the boy. will say, says, ये सब जो प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं. कौन से स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में. एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट रूल, इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स सम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज. अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. हैबिचुअल फैक्ट, हर रोज आप जो काम करते हैं, आई गो टू द जिम डेली, ये एक हैबिट है, हैबिचुअल फैक्ट बोलते हैं इसको. आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग एवरी डे, ये भी एक आपका क्या बोलते हैं, हैबिचुअल फैक्ट है. इन सब चीजों में इफ द रिपोर्टेड स्पीच contains some universal truth or habitual fact, the tense of the verb will not change. यहां पर देखिए पहला एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक है, अब हम इसी चीज को क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, अपने वर्ड्स में कैसे रिपोर्ट करेंगे? द टीचर सेड बन जाता है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स. देखिए सेड टू द स्टूडेंट्स आया, एक सब्जेक्ट है यहाँ पे जिसको टीचर बात कर रहा है, इसीलिए सेड बन गया टोल्ड. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, कॉमा हटा के दैट. अब ये जो स्टेटमेंट है जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है वो वैसे का वैसा ही रिपोर्ट करेंगे, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. Next example, the girl said, I drink tea every morning. The girl said that she drank नहीं होगा, that she drinks tea every morning. क्यों? क्योंकि एक हैबिचुअल फैक्ट है. I drink tea every morning मतलब एक हैबिट है, रोजाना वो चाय पीती है सुबह. सो ऐसे स्टेटमेंट्स में जो कि एक हैबिचुअल फैक्ट है, आप इसको दैट शी ड्रैंक नहीं करेंगे, दैट शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. Now, when two actions occur at the same time in past, no change in the tense of the verb in the reported speech is made. Two actions occur कर रहे हैं सेम टाइम पे. देखिए, she said, I ran away when I saw the snake coming. दो actions क्या हो रहे हैं यहाँ पे? उसने स्नेक को आते हुए देखा और दूसरा वो भाग गई. दो actions. When two actions occur at the same time in the past,
No change in the tense of the verb in the reported speech is made. She said ही रहेगा, ठीक है. She said, कॉमा हटा के that हो जाएगा. That I ran away, क्योंकि ये हम बोल रहे उसने क्या किया. That she ran away when she saw the snake coming. Okay? So यहाँ पर इसका टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब का, ठीक है. She said I ran away when I saw the snake coming. यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स. आप हमेशा सेंटेंस में देखेंगे एक एक्शन हो रहा है या दो एक्शंस हो रहे हैं फास्ट में. She said I ran away when I saw the snake coming. ये दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. उसने स्नेक को देखा और फिर वो भाग गई. सो ऐसे केसेस में she said रहेगा. She said only that she ran away when she saw the snake coming. Excuse me. Next we will see verbs showing nearness in time or place are generally changed into words showing distance. जैसे कि here बन जाता है there, this बन जाता है that. जब हम स्पीच को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब कर रहे हैं, थोड़े वर्ड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. here, there, this, that, now, then, today, that day, thus, so. Tomorrow becomes the next day. Ago becomes before. Yesterday becomes the day before or the previous day. ये सब चीजें आपको याद करने हैं. Here becomes there. This becomes that. Now becomes then. Today becomes that day. Thus becomes so. Tomorrow becomes the next day. Ago becomes before. And yesterday becomes the day before or the previous day. एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे स्टूडेंट्स. इन डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम सॉरी टू बी हियर दिस मॉर्निंग. यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, सेड है. अब देखिए इनडायरेक्ट में ये क्या बन जाएगा. ही सेड दैट, कॉमा हटा के दैट. ये इनडायरेक्ट स्पीच में हम बोल रहे उसने क्या बोला. सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी. एम बन जाता है वॉज सॉरी टू बी देयर दैट मॉर्निंग. टू बी हियर दिस मॉर्निंग, जब हम रिपोर्ट करेंगे हियर बन गया देयर एंड दिस मॉर्निंग बन जाता है दैट मॉर्निंग, क्योंकि हम बोल रहे हैं उसने क्या बोला, ठीक है. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. ही सेज आई एम सॉरी टू बॉदर यू येस्टरडे. अब ध्यान दीजिए, ही सेज कॉमा हटा के दैट. अब यही स्टेटमेंट ही सेज आई एम सॉरी टू बॉदर यू येस्टरडे हम बोलेंगे अपने वर्ड्स में कि उसने क्या बोला, इसीलिए वो बन जाता है he says that he is sorry to have bothered. To bother बन जाता है to have bothered me the previous day. ठीक है, उसने किसको बॉदर किया, मुझे ही बॉदर किया. सो टू हैव बॉदर्ड मी द प्रीवियस डे. ये मैं अपने वर्ड्स में बोल रही हूं कि उसने मुझे क्या बोला था. नेक्स्ट, चेंज ऑफ पर्सन. When converted into indirect speech, the persons of the pronouns and the verbs in the reported speech are changed. Thus, pronouns of the first person, हम जानते हैं pronouns first person, second person, third person में होते हैं स्टूडेंट्स. तो इस हिसाब से कैसे चेंज होगा ये हम पढ़ेंगे. Pronouns of the first person in the direct speech change according to the subject of the reporting verb. Subject of the reporting verb. So example देखते हैं. She says, I am writing a letter. So indirect में हम क्या बोलेंगे, वो क्या कर रही है. He says that he is writing a letter. ठीक है. Pronouns of ये first person का हुआ. They will change according to the subject. She says I am बन गया. She says that she is. Now, pronouns of the second person. First person क्या है, जो खुद बात कर रहा है. Second person जिसके साथ हम बात कर रहे हैं. So pronouns of the second person change according to the noun or pronoun coming after the reporting verb. Direct. I said to Ranbir, you will have to write. I said to Ranbir, एक पर्सन के साथ वो बोल रहा है, कुछ सब्जेक्ट है उसके बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, सेड के बाद एक पर्सन है जिसको वो कुछ बोल रहा है. तो I said बन जाता है I told Ranbir that, कॉमा हटा के that he would have to write. ठीक है. Pronouns of the third person in the direct speech remain unchanged when converted to indirect speech. Anil said to me he will be awarded. Anil told me. Anil said to me है तो Anil told to me नहीं होगा.
Anil told me that he would be awarded. Anil told to me is wrong. Anil told me that he would be awarded. Next, questions. When a question is introduced by the interrogative words like what, where, etc., the words like asked, inquired, etc. are written before indirect speech. The interrogative form मतलब questioning form is changed into the assertive form in indirect speech. हमने sentences 4 तरह के पढ़े थे स्टूडेंट्स. एक है आपका डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव. तो इंटरोगेटिव फॉर्म जो होता है दैट इज चेंज इनटू द assertive form in direct speech, indirect speech. The mark of interrogation is also dropped. जो क्वेश्चन मार्क होता है उसे हम ड्रॉप कर देते हैं. ये सब क्वेश्चंस जब आते हैं हम बोल रहे हैं. No conjunction is used if the sentence begins with a question word. Conjunctions क्या है? Previous chapter में हमने पूरा पढ़ा था. They are joining or linking words. Now examples are, he said to me, what is the color of your bike? Said to me, what is the color of your bike? Question mark है. So ये said to me बन जाता है reporting verb asked me. He asked me what the color of my bike was. What the color of my bike was, ये full stop आएगा इसके बाद. ठीक है. पहले में ही सेड टू मी मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ योर बाइक क्वेश्चन मार्क. बट यही चीज जब हम बोलेंगे कि उसने क्या बोला वो सेड बन जाता है रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड. ही आस्क्ड मी व्हाट द कलर ऑफ माय बाइक वाज. नेक्स्ट, राकेश आस्क्ड मी वेयर इज योर बुक क्वेश्चन मार्क. राकेश आस्क्ड मी, ये जो आस्क होता है ना उसके लिए एक बेटर वर्ड है एनक्वायर्ड. राकेश एनक्वायर्ड वेयर माय बुक वाज फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन मार्क. Now, when the question is not introduced by the interrogative words like what, where, etc. Interrogative matlab, interrogate matlab to question. So, these are questioning words, what, where, etc. ये सब question पूछने वाले शब्द है. So, the reporting verbs are followed by if or whether. Most commonly, answer to these questions is found by yes or no only. So, इसमें हमने क्या पढ़ा? When the question is not introduced by the interrogative words like what, where, etc. Reporting words are followed by if or whether. Not introduced. इस पे ध्यान दीजिए. Now we will do try out one. He said to me, where do you live? He said to me, where do you live? देखिए बच्चों क्वेश्चन मार्क है. ये क्वेश्चन मार्क हम हटाएंगे. He said to me बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है. He asked me where I lived. Full stop. She said to me, where are you going? Question. She asked me where I was going. He said to us, are you going to school? Question mark. He asked us. Said बन गया asked क्योंकि question mark है. He asked us if, देखिए are you going to school बन गया if we were going to school. इस पे ध्यान दीजिए, ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. Are you going to school? He asked us if we were going to school. If वर्ड पे ध्यान देंगे. If या वेदर हो जाएगा. ठीक है. जहां पर क्वेश्चनिंग वर्ड्स व्हाट, वेयर नहीं है, ये स्टार्ट हुआ ये क्वेश्चन आपका आर के साथ. ठीक है. इस जगह पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आएगा इफ या फिर वेदर. ही आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट 4. कैन आई हेल्प यू विथ योर होमवर्क क्वेश्चन मार्क. सेड माय फादर. माय फादर आस्क्ड इफ ही कुड हेल्प मी विथ माय होमवर्क. ओके. नेक्स्ट ट्राई आउट 2. Complete the sentences in reported speech with the help of the following clues. I'm afraid of driving. She told me that she was afraid of driving. I am बन गया I was indirect speech में. I like traveling by train. He said that he liked traveling by train. जब मैं बता रही हूँ कि उसको क्या पसंद है तो वो like बन जाता है like. You can get off the bus. The driver told them that they could get off the bus. Can get off बन गया that they could get off. Now try out 3. Complete the sentences in reported speech. Jack said, I love this city. Jack said that he loved this city. Said बन गया, said के बाद हम कॉमा हटा के that लगाएंगे एंड फिर बोलेंगे कि उसको क्या पसंद है. That he loved this city. Are you sure? She asked him. अब देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है. आर यू श्योर. शी आस्क्ड हिम इफ, क्योंकि आर है इफ बन जाएगा. शी आस्क्ड हिम इफ ही वाज श्योर.
I can't drive a car, he said. She said that she could not drive a car. Can't, cannot ban gaya could not. Be nice to your sister. I said to her. I asked her to be nice to her sister. Now we will go over to tryout number 4. Change the following sentences into indirect speech. Please refer to the questions in your book, students. First question is, Sam says to me, I like cycling. Now, Sam says to me है, तो Sam tells me होगा. अगर Sam said to me होता, तो Sam told me होता. But ध्यान दीजिए यहाँ पे, Sam says है, तो Sam tells me. Sam tells me, कॉमा हटा के that लगाएंगे, that he likes cycling. Like जो है बन जाता है likes. आपको tense पे बहुत ध्यान देना है, tenses पे. Next, second, I said to him, don't go there. अब I said to him है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद एक सब्जेक्ट हिम है, इसीलिए आई सेड टू हिम बन जाता है आई टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर. आई टोल्ड हिम दैट नॉट टू गो देयर इज रॉन्ग. आई टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर. नंबर 3, अनुष्का सेड टू यू हेट्रेड इज एज ब्लाइंड एज लव. अनुष्का टोल्ड यू दैट हेट्रेड इज एज ब्लाइंड एज लव. अब देखिए हमने हेट्रेड इज एज ब्लाइंड एज लव का टेंस क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ये एक कोटेशन है. ठीक है, कोटेशंस, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड हैबिचुअल फैक्ट्स जैसे का तैसा ही लिखा जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करेंगे. शी सेड टू मी वरी ऑफन गिव्स अ स्मॉल थिंग अ बिग शैडो. शी सेड टू मी है, तो ये बन जाएगा शी टोल्ड मी दैट worry often gives a small thing a big shadow. Number 6. Excuse me. He said to the child, don't gobble the food. He said to the child बन जाता है. He told the child, don't gobble the food बन जाएगा not to gobble the food. Number 7. He said to me, is your sister at home? Question mark. He asked me if my sister was at home. Number 8. I said to him, what is your name? Question mark. I asked him what his name was. What is your name बन जाता है what his name was. Number 9. They said to us, will you help us? Question mark. They asked us if we would help them. Will you help us बन जाता है if we would help them, क्योंकि हम उन्हीं के शब्द को अपने शब्दों में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या पूछा था. Number 10. The teacher said to the student, have you submitted the project? The teacher asked the students whether they had submitted the project. My mother said to me, what are you doing now? Question mark. My mother asked me what I was doing. 12. He said to her, I caught a large fish. He said to her, so he told her that he had caught a large fish. He had caught a large fish. ये क्योंकि action past में है. He has already caught a large fish. So, number 13. She said, please give me another chance. He asked to be given another chance. या फिर आप जहां पर भी ऐसे please give me another chance होता है ना बच्चों, आप ये भी लिख सकते हैं He pleaded to be given another chance. ठीक है. Number 14. I said to him, did you understand this topic? Question mark. I asked him if he understood the topic. If he understood the topic. जहां पर भी questioning words what, where ये सब नहीं होके अगर क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं जैसे यहाँ पर डिड है और पहले हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था आर से शुरू होता है क्वेश्चंस, तो वहां पर इफ लग जाता है, इफ या फिर वेदर लगता है. सो यहाँ पे डिड के जगह पे इफ बन जाएगा ये इनडायरेक्ट स्पीच में. 15. She said to me, can I take the remote control? Question mark. She asked me if she could take the remote control. Number 16. The captain said to the players, we shall win the match. The captain told the players that they would win the match. We shall win. We would win the match. Now try out 5.
Rewrite the following sentences after Number 16 देखिए students, the captain told the players that they would win the match. The captain said to the players, we shall win the match जो है वो आपका हो सकता है the captain told the players that we should win the match. shall बन जाता है should. So please make this change over here. would के जगह पे इसको should कर दीजिए. That they should win the match. Now let us go over to creativity. Try out number 5. Rewrite the following sentences after changing them into indirect speech. Refer to the question in your textbook first. The leader said, may we have a society based on the principles of equality and justice. The leader hoped to have a society. देखिए ये जो अंडरलाइन हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, ये ऐसे हम इनके जगह पे जैसे सेड जहां पर वो प्रे कर रहा है कि मे वी हैव अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, ही इज होपिंग, सो वी विल से द लीडर होप्ड टू हैव. सेकेंड वाला देखिए, द रिच मैन सेड टू हिज सर्वेंट मे योर चाइल्ड बी क्योर्ड ऑफ हिज इलनेस. वो अपने सर्वेंट के लिए विश कर रहे हैं कुछ अच्छा, सो द रिच मैन विश्ड. Number 3, the woman said to her husband, oh that we were as prosperous as our neighbors. The woman wished that they were as prosperous as their neighbors. Number 4, the children said, may our country live long. The children prayed that their country live long. Number 5, they said, may we soon see the days when we shall be able to earn sufficiently. They prayed or wished to soon see the days when they would be able to earn sufficiently. Number 6, the old man said, may there be peace and happiness among all sections of our society. The old man prayed for peace and happiness among all sections of their society. Number 7, the social activist said to the poor woman, congratulations, your child has got admission in a good school. The social activist congratulated the poor woman on her child getting admission in a good school. आप साथ साथ tenses को भी change करते जाएंगे. Number 8, father said to his son, stop misbehaving with the wind. Father commanded या ordered भी हो सकता है his son to stop misbehaving with the vendor. So with this students we come to the end of your reported speech chapter. Before going to this chapter students, I would suggest you please first go over to the tenses video, understand tenses properly, then come over to this video. It will be very easy for you. First you have to understand what is reported speech, what are the two kinds of reported speech, direct speech, indirect speech, what are the rules of your reported speech, and then you attempt this exercise and worksheets. If you like my channel students, please like, share and subscribe. Keep the notification and bell button on ताकि मैं जब भी next video डालूं आपको notification मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं. If you like my channel students, please subscribe. Thank you.